Good morning, everyone. I extend a warm welcome to each one of you present today. I find immense pleasure to introduce our guest speaker for today, Dr. Srimant Kumar, consultant diabetologist and holistic care physician, Global Hospital and Research Center, Mount Abu, Rajasthan. Sir takes special interest in organizing health camps for creating awareness for diabetes and lifestyle diseases and has conducted more than 300 programs all over the world. His programs are regularly broadcasted on PM TV and millions of people take benefit all over the world. Today, we, the NSS volunteers of Carmel Convent School, Chandigarh, along with our parents, feel privileged to be a part of this seminar. We look forward to a valuable session. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sanya. You started very nicely. Good, warm welcome because it is a cold morning now. So everybody must be feeling very cold. So being a doctor, I'll start something about health. Should I speak in English or you are comfortable in Hindi also? What is the language you prefer? So whatever suits you, sir, both. It's up to you, sir. So I will speak in English, Hindi and English mix. So, okay. So, मैं बता रहा था, being a doctor, I will talk something about health. Because in life, what do you feel? Health, how much it is important? When I was a student, in that time, there was a proverb, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. I think this proverb has been changed now. People have changed it. When money is lost, everything is lost. And when character is lost, nothing is lost. But health, वो बेचारा वो बीच में ही है. लेकिन मुझे अगर पूछा जाए, मैं कहूँगा when health is lost, everything is lost. When health is lost, everything is lost. Because जब आप हेल्थ को खो देते हो, देखना जीवन का जो मजा है वो खो देंगे. क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी खटिया में पड़े रहोगे, लोग सब कुछ खाते रहेंगे, आप देखते रहोगे, खा नहीं पाओगे, आप कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जा नहीं पाओगे. तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. तो आज मैं इसलिए इस संबंधित बातें कुछ करूँगा. लेट अस चेंज आवर लाइफस्टाइल टू चेंज आवर लाइफ. ओके, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं ताकि हम अपना सब कुछ चेंज रहेगा, देखना बहुत अच्छा रहेगा. सो आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूँ. There are three valuable things in life. Everybody feel they have three valuable things in their life. What are those? Health, wealth, and happiness. These are the three things. सभी चाहते हैं जीवन में कि ये तीन चीजें जीवन में हो. कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये तीन चीजें नहीं चाहिए, है ना? नहीं. But out of these three, what do you think? Which one is most important? Do you think that wealth is very important? People run after wealth in their entire life. Money, money, money. Sweeter than honey, better than sunshine. Money is everything. दुनिया में पैसा के लिए सब पागल है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं. पैसा ही सब कुछ है. एक दिन पैसा इकट्ठा करके मर गया, सब यहाँ ही छोड़ जाएंगे. जब मरेंगे कुछ लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. दिस इज द रियलिटी. आप बताऊंगा कि दुनिया में 50 इयर्स तक लोग पैसा 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 पैसा, सब खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, फैमिली भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे. पैसा पैसा पैसा. फिर हार्ट अटैक हो गया, जितना पैसा कमाया था सब एक हफ्ता में आईसीयू में डिपॉजिट कर दिया. इसको बुद्धिमान कहेंगे? नहीं. देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. देखिए, वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में. जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है. बट इफ यू आर हेल्दी देन ओनली यू कैन अर्न वेल्थ. आप बीमार हो जाएंगे तो सारा पैसा जितना रखे हो सब गंवाओगे. और जो दोज हु आर हेल्दी दे आर आल्सो हैप्पी. आप हेल्थ ठीक नहीं है तो हैप्पी रह सकते हो. सो आउट ऑफ दीज थ्री,
health is most vital, very important. So the first wealth is health. जीवन में वास्तव में महात्मा गांधी, the national father, he has told, it is not the pieces of gold and silver, but it is the health which is the real wealth. Which is the real wealth. तो इसलिए जीवन में हमें हेल्दी कैसे रहना है सीखना है. बट अनफॉर्चुनेटली our education system is fallacious. The Britishers, they taught us to be clerks and workmen. That's all. हमारे भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी पहले गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था बच्चों को, बहुत कैसे चरित्रवान बने, कैसे अपने आप को केयर करें, अपने पेरेंट्स को, सबको पूरा फैमिली लाइफ क्या है, सोशल लाइफ क्या है, हमारा जीवन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, सब कुछ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, मोरल्स पढ़ते थे. लेकिन आज पूरा टोटल चेंज हो गया. खाली हम एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एक क्राफ्ट्समैन बनने के लिए खाली पढ़ रहे हैं, बस दैट्स ऑल, टू अर्न आवर लिवलीहुड. परंतु बच्चों को चरित्रवान कौन बनाएगा? आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखो बिल्कुल एकदम चरित्रहीन है, तो कौन बनाएगा? हमारी शिक्षा प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा. और आजकल तो बच्चे हमारे हॉस्पिटल में, यू विल बी सरप्राइज टू नो, छोटे छोटे बच्चे, टीनेज, सब डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, सब बीमारियां. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है. हेल्थ के बारे में लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चे आप सदा हेल्दी रहो. जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं आप भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यू आर रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रेन. आप ठीक रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे, इसलिए सभी को मैं सुना रहा हूँ, प्लीज लिसन. सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग. बहुत लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं है. बहुत मोटे मोटे लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मैं पूछता हूँ भाई आप अपना तो ध्यान रखो, तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो फिर भी ठीक हूँ, पहले तो और हेल्दी था. दैट मींस दे आर मोर ओबेस. ओबेसिटी इज कंसीडर्ड एज हेल्थ. मेनी पीपल दे थिंक लाइक दैट. मैं पूछता हूँ आपके फैमिली में, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर भी ऐसे आप जैसे मोटे हैं क्या? हाँ, हमारे घर में सब तो हेल्दी है, सब हेल्दी है. तो पीपल थिंक दैट ओबेसिटी इज हेल्थ. नो, health is a state of complete well-being. WHO, World Health Organization, defines it as a state of complete well-being. So what is well-being? Well-being means looking good and feeling great. Well-being means feeling energetic. Well-being means working better. Well-being means living longer. ये कैसे होगा? When you are healthy. When you are healthy, then only you can experience this state. Experience, okay? Otherwise, it is impossible. So, ये बीच में क्या आ रहा है? Okay. So, what is physical health? Actually, there are for complete health, WHO defines it is the complete physical, mental, and social and spiritual well-being of a person, and not merely the absence of disease or infirmity. So, we must understand what is physical health, what is mental health, what is social health, what is spiritual health. People do not know much about this. What do you mean by spiritual health, physical health? कोई देखने में मस्कुलर लगता है या ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो उसको हेल्दी कहेंगे फिजिकली? नहीं. फिजिकल हेल्थ मीन्स इफ यू कैन स्लीप 4-5 hours without any disturbance, if you have sound sleep for about at least 4-5 hours, you have good digestive power. आप जो भी खाते हो अच्छी तरह से हजम कर पाते हो, बिना यहाँ पे भाग दौड़ करके सब कुछ काम कर सकते हो. आपका बॉडी वेट नॉर्मल है, आपके एज अनुसार, आपके हाइट के अनुसार आपका बॉडी वेट जितना होना चाहिए आइडियल बॉडी वेट है. आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका टेम्परेचर ठीक है, वाइटल्स ठीक है, तो फिजिकली हेल्दी कहेंगे. लेकिन लोग खाली देखने में कोई हट्टा कट्टा है तो उसको हेल्दी कह देते हैं, लेकिन नहीं. दीज आर द पैरामीटर्स. इसी प्रकार हु इज मेंटली हेल्दी? मेंटली हेल्दी जो जीवन में वर्क लाइफ का बैलेंस रखता है, उसके
फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। और व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन, ये सबका बैलेंस रखता है, उसको ही मेंटली हेल्दी करेंगे। एज ए स्टूडेंट यू शुड स्पेंड टाइम टू स्टडी हार्ड। अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको समय निकालना चाहिए। आप पढ़ाई से ठीक से नहीं करते स्टूडेंट लाइफ में और कुछ में बिजी हो तो इसको बैलेंस नहीं कहेंगे। तो जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ड्यूटी है, जिस समय जो करना चाहिए वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो उसको वर्क लाइफ बैलेंस कहेंगे। और आपका मेंटल स्विंग्स नहीं होना चाहिए। टू बी मेंटली हेल्दी, सारा दिन देखना लोग इतने बार मूड चेंज करते रहते हैं। अभी अभी देखो तो खुश, अभी अभी देखो तो रो रहे हैं, अभी अभी आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद बिल्कुल गुमसुम, किससे बात नहीं। तो उसको मेंटली हेल्दी नहीं कहेंगे। जो सदा चेयरफुल है, खुश है, सबके साथ मिलजुल के मिलनसार है, हर परिस्थिति को कैसे उसमें बैलेंस रखें, मेंटली इक्विलिब्रियम बनाए रखें, जो जानता है इज मेंटली हेल्दी। सोशली हेल्दी कौन है? सोशली हेल्दी जो सबको हेल्प करता है, सबसे हेल्प लेता है, समाज का, बच्चे बूढ़े सबको मदद करता है और पर्यावरण का भी ध्यान देता है। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहते हो, खुशी से रहते हो और पर्यावरण का भी ध्यान देते हो। आप जहाँ रहते हो, हमारे भारत में क्या करते हैं लोग, घर की सफाई करेंगे, सारा कचरा सामने रास्ते में नाले में, तो कौन सफाई करेगा? कितने लोगों को प्रॉब्लम आता है। बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ केला खा के छिलका बाहर फेंक रहे हैं, कितनी खराब बात है। भारत में पेड़ पौधे काट देंगे, सब एकदम बिल्कुल पर्यावरण का भी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा देश इतना गंदा है। आप विदेश जाओ देखना, सब पूरा ध्यान देते हैं, सब साफ सुथरा रहते हैं। वहाँ तो फाइन पड़ता है कोई ऐसा करता है, तो इंडिया में तो कुछ भी करते हैं। तो बच्चे ये सब सीखना चाहिए हमें, कैसे हम खुद हेल्दी रहें, हमारे जहाँ रहते हैं गली मोहल्ले भी साफ रखें, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सब हम गंदगी फैलाएंगे, सबको बीमारी होगी, वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए सोशल हेल्थ। और व्हाट इज फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये किसी को पता नहीं है। व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? एनीबॉडी हु इज लिसनिंग, एनीबॉडी कैन टेल? One is physical health, mental health, social health, and the fourth dimension is the spiritual health. Then only you are completely healthy. Now tell me what is spiritual health? मैं तीनों तो बता दिया, physical, mental, social. Anybody? You can unmute them and you can ask. Pritivan, you can ask Yes. anybody. Parents. Yes, students, volunteer. Yes, volunteers. Whatever you have in your mind related to spiritual health. What do you think is spiritual health? Come on, parents are along with you. Soul consciousness. Soul consciousness, very true. Good. Yes, come on. Share your views. Well-being of the soul. Okay. Meditation. Great. Meditation. Great, Rishita. Yes. Yes, what else? Connection with your soul, spirit. Connection with your soul. Okay. Yes, soul Rejuvenation connection. of the mind Correct. and body. Rejuvenation of the mind and body. Okay. Wow, great. Listen. Great. One thing, I explained the signs of physical, social, mental health. जो फिजिकली हेल्दी होगा तो उसका नॉट ओनली हिज बॉडी वेट, उसका ब्लड प्रेशर जैसे बताया सिम्टम्स, ऐसे ही जो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा कि उसके क्या लक्षण ऐसे दिखेगा, क्या वो कोई जनेऊ पहना होगा, कोई चीता लगाया होगा, तिलक लगाया होगा, कि डेली मंदिर जाता होगा, डेली कोई चर्च में जाता होगा, क्या निशानी दिखेगी? सर पूछना चाह रहे हैं कि जैसे स्पिरिचुअली, हाँ, spiritually. होगी मैम। क्या होगा? पॉजिटिव थिंकिंग होगी सर, पॉजिटिव अच्छा। थिंकिंग। ओके, और बताओ। Peace of और सोचो। हाँ, मुझे एक बता। पीस ऑफ माइंड। he would be Yes. mentally calm Great. and he would be more organized. Yes, mentally calm and more organized. Very true. Great. Mentally Yes. healthy होगा, वो mentally health है, वो that is mental health. What do you mean by spiritual health? You would be at peace.
Okay, very good. Believe good. in some kind of Know superpower. that you have a purpose for this life. Okay, very good, very good, very good. आपने जो बताया ठीक है, but see, this is the complete answer. What is spiritual health? Spiritual health, the sign will be a positive and powerful mind with a loving and generous heart. The man who is spiritually healthy, he will have a positive and powerful mind with a loving and generous heart. This is the sign of a spiritually healthy man. This comes with spiritual knowledge, spiritual wisdom. If somebody knows about his own existence, from where he has come, what is the purpose of life, after death, where we are going, who is our spiritual father, what is this world, this is called spiritual knowledge. Those who have spiritual wisdom, spiritual knowledge, they can only become spiritual health. Religion is entirely different from spirituality. Spiritual and religion is confined to a group of people, some rituals, some belief system, something, and it is confined to a small people only. And they are now this, if you look at this world and the history, if you read the history, the religion has divided this world into many divisions and subdivisions. And in the past, there are so many wars and massacres and whatnot. In the name of religion, people have done a lot of violence in this world. And religion is not spirituality. Religion is very narrow and it is limited. It is full of blind faith. So spirituality is which is universal, which is applicable for everybody, not only human being, but also other animals and birds and for all 5 elements of the nature. जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, उसको spirituality कहा जाता है. It has no boundaries, no limit. So spiritual knowledge, it is a science, spiritual science, but religion is not a science. It is full of blind faith. So today the world, if you look at, there are so many religions. That's why we have divided this world into fractions and fractions, and we are fighting each other. But spirituality, it is universal. So those who remember, realize that this world is a family. We are children of God. We are all souls. Our Father is Supreme Soul. With that concept, who looks at everybody as his own brother and sister and lives like a world like a family, and he will have positive and powerful mindset and a loving and generous heart. He is a spiritually healthy man. So my purpose of telling is, if you are healthy in all the senses, physical, mental, social, and spiritual, then only you are completely healthy and life is colorful. When you are healthy, when you are diseased, what happens? So I was telling, most of us run after wealth, neglecting our health in the first half of our life. 50 साल तक पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन after 50, in the second half of the life, then we spend the entire amount of wealth we have deposited for the sake of health. Yeah, kuch ho gaya. So it is not wise. This is foolishness. So why people are diseased today? Because of wrong lifestyle, unhealthy lifestyle. Most of the diseases today, if you look at, whether it is diabetes, high blood pressure, heart attack, these are the common diseases today everywhere. Like it is like common cold. Every family is having all these diseases. All these diseases are not there. Children, when I was a student of medicine in 70s, I am telling you, at that time, our professor are telling these diseases are Western countries diseases. These are not our country's diseases. And these are old age diseases. But nowadays, we see that these diseases, diabetes, high blood pressure, stroke, cancer, heart attack, these diseases are called non-communicable diseases. इनको हम अनसंक्रामक बीमारी कहते हैं. कुछ बीमारियां हैं इन्फेक्शियस है, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इट इज इन्फेक्शियस, एक दूसरे को फैलता है. बट इसके लिए लोग पैनिक हो रहे हैं. लेकिन एक साल में लगभग 11-12 लाख लोगों का होल वर्ल्ड में डेथ हुआ. बट डू यू नो, दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ तो हार्ट अटैक के लिए हो रहा है. डायबिटीज अलोन किल्स मोर देन 10 लाख पीपल इन इंडिया ओनली. सारे वर्ल्ड में तो आधे करोड़ लोगों का मौत होता है. तो ये बीमारियां कितना खतरनाक है लोगों को पता नहीं, बिकॉज दीज आर वेरी साइलेंट एंड स्लो. कोरोना वायरस एकदम एक्यूटली आ गया तो इसलिए सबको डर है, डेंजरस है.
लेकिन कोरोना वायरस से 1000 गुना डेंजरस है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और आजकल बच्चों को हो रहा है, बच्चों को छोटे टीन एज में भी बच्चों को हो रहा है। सो इसलिए बच्चे बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड दीज डिजीजेस नाउ साइंटिस्ट से दीज आर बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट इज लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मीन्स आप जब से सवेरे उठते हो रात को सोने तक आपका लाइफ कैसे, हाउ यू आर स्पेंडिंग, कैसे आप खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आपका रिलेशन है, क्या आपके थॉट्स है, आप जीवन में सारा आपके क्या हैबिट्स है, क्या हॉबीज है, ये सबको लाइफस्टाइल कहा जाता है। सो टुडे आवर लाइफस्टाइल हैज बिकम टोटली अनहेल्दी। वी हैव अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट। लोग कहाँ सो रहे हैं? टीवी देखते देखते सोफा में सो जा रहे हैं और सोते रहते हैं रात को 1-2 बजे तक, मोबाइल में गेम खेलते खेलते क्या क्या करते करते इंटरनेट में 2 बजे सोएंगे, उठेंगे दिन में 10 बजे। These are all unhealthy sleeping habits. God has created this day and night for what purpose? Day to work, night to sleep. But सारी रात लोग जागते रहते हैं, दिन में जाके सोएंगे, पूरा उल्लू की तरह जीवन। इसलिए आई सी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स, आजकल कॉलेज स्टडी पूरी होगी, कॉल सेंटर में, अमेरिका में उस समय दिन होता है, हमारे यहाँ रात है, कॉल सेंटर में ज्वाइन करेंगे, रात भर जागेंगे और एकदम 20 साल भी उम्र नहीं हुआ है, डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया, सब बीमारियां। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट। Scientists now they have seen that 10 p.m. till morning 4 a.m. this is the period to sleep. ये समय जो जागता है उसको ये सब बीमारियां हो रही है। इसलिए साइंटिस्ट also say that go to bed very early, get up early. हमारे देश का ही तो कहावत है, early to bed and early to rise makes a man healthy ways. But how many of us we are following it? So those who do not, children, be careful, because if you have this habit now, I'll 100% give you guarantee. In no time you will develop all these diseases and whole life will suffer. So unhealthy sleeping habit, no. 10 माना बस, 4 माना तैयार। रात को 10 बजे तक सो जाओ, 10 साढ़े 10 बजे get up early in the morning, study. उस समय आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको परमानेंट मेमोरी होगी। तो इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना। नेक्स्ट इज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। आज पहले जमाने में बाहर कोई नहीं खाता था, घर में हम सब खाते थे। आजकल सब ऑनलाइन मंगा के सब गंद चीजें, गार्बेजेस खा रहे हैं सब, तो बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, ये सब क्या है? इसमें सब सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कितने नमक है। एक बर्गर में 10 ग्राम नमक होता है। सारे दिन में हमको 3-4 ग्राम नमक खाना चाहिए। 2 बर्गर खा गया तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो क्या होगा? कितनी कैलोरीज है इसमें, सब नाइट्रेट्स है, कैंसर पैदा करने वाली चीजें हैं। क्यों खाना है बाहर की चीजें? कौन बनाता है, कैसे बनाता है, गंद चीजें उसमें डालते हैं। नो, हमारे देश का कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आप घर में ही खाओ, देखो आपको कोई बीमारी होगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई बीमारी नहीं है। घर में जो मनपसंद की चीजें, मम्मी को बोलो बनाओ, घर में खाओ। आजकल फादर मदर ही ऑनलाइन मंगा के खाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी तो खाएंगे ऐसे। आजकल हर 100 मीटर्स में एक रेस्टोरेंट, पहले था नहीं कुछ। पहले जमाने में, हमारे बचपन के टाइम में मुझे याद है, बचपन में हम लोग घर में खाते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए, लेकिन लोग आज बाहर खा के आते हैं, घर में लेटरिन करते रहते हैं। देखो सिनेरियो है टोटली चेंज। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स है। सो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले लोग कितना मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करके, भाग दौड़ करके, कितना सामान उठा उठा के। आजकल सबके पास गाड़ी, मोटर, मोबाइल, सब साइंस के गैजेट्स है, इसलिए बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं। साइंटिस्ट आर टेलिंग प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हैजर्डस। आप बैठे रहोगे तो बीमार हो गया, 1000 बीमारी। इसलिए डू सम एक्सरसाइज, रिमेन एक्टिव होल लाइफ, होल डे। एंड अनहेल्दी फूड, वी आर ईटिंग ऑल दिस थिंग्स। अनहेल्दी फूड जो बाजार में मिलता है, सब गंदी चीजें सब खा रहे हैं, और अनहेल्दी ड्रिंक्स मिलते हैं, सब क्या क्या सब पीते रहते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना, आप देखना, जो फेंटा या मिरिंडा जो एकदम ऑरेंज कलर का पीते हो, उसमें एक कॉटन का व्हाइट कोई एक रुमाल उसमें डाल देना और थोड़े समय ऐसे स्टीर कर देना। देखना 2 मिनट में आपका रुमाल बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा। तो बाकी
पानी रह जाएगा सिंपल। इसमें इतने आर्टिफिशियल कलर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है और प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, क्यों पीना है ये सब चीजें? हमारे देश में नींबू की कमी है, फ्रूट्स की कमी है, नारियल की कमी है, क्यों पीना है ऐसे गंद चीजें? तो इसमें बहुत खराब चीजें हैं बच्चे, नेवर नेवर। आप देखना कोई भी कोल्ड ड्रिंक को ले लो और थोड़े समय उसको बॉयल कर दो, देखना पूरा पिचू जैसा हो जाएगा। रास्ता जो डामर में डालते हैं ना, डामर रास्ता बनाने के लिए, ऐसा पूरा कोल्ड टार जैसा हो जाएगा बिल्कुल। उसमें 50 पैसा का भी फूड वैल्यू नहीं है, ना न्यूट्रिशन है, ना कैलोरीज है, उसमें खाली एम्प्टी कैलोरीज है, पी के पूरा गुब्बारा जैसा फूल जाओगे। एक लेडी आई थी हमारे हॉस्पिटल में, 110 किलो, 120 किलो। मैं बोला कि बहन जी थोड़ा ध्यान तो रखो। कहती है डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं बोला कुछ नहीं खाती हूँ, कमाल है। अच्छा बताओ ब्रेकफास्ट क्या करती हो? कहते मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं सोचा कि वर्किंग लेडी होगी, शायद चाय बिस्किट लेती होगी। बोला सच बताओ लंच क्या करती हो? तो लंच भी नहीं करती हूँ। आजकल तो वर्किंग लंच करते हैं, डे टाइम में काम करते हैं तो लोग सैंडविच मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। मैं बोला सच सच बताओ डिनर क्या करती हो? कहते डिनर भी नहीं करती हूँ। मैं तो वंडर खाया, बोला कि फिर करती क्या हो? कहते मैं दिन में 20 बोतल कोका कोला पी जाती हूँ और 120 किलो। उसको डायबिटीज, हाइपोटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या बीमारी नहीं, सिवाय म्यूजियम ऑफ ऑल द डिजीज। तो इसलिए ये सब बिल्कुल टच भी नहीं करना है। जब भी आपको मूड करता है आप नींबू पानी बनाओ, शरबत बना के पियो, आप गन्ने का रस पियो, फ्रूट जूस पियो, भले पीना है तो, कि नारियल पानी पियो, लेकिन ये सब क्यों पीना है? ये सब विदेशी लोग दे आर डंपिंग ऑल दिस थिंग्स, तो हम बीमार हो जाएं, फिर हमारे देश में फिर दवाई सेल कर रहे हैं। कितना बुद्धिमान है हम सभी, बिल्कुल टच नहीं करना। एंड लोगों के मटेरियलिस्टिक गोल है, सारा दिन भागते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, और ये करना है वो करना है, मरते समय सब यहाँ छोड़ के जाना है। एंड ओवरवर्क एंड स्ट्रेस, कितना एकदम लोगों को स्ट्रेस कितना है, दिन रात काम करते रहते स्ट्रेस, इसलिए सब बीमारियां हैं। अनहेल्दी हैबिट्स है, टबाको, अल्कोहल, ड्रग्स, एक्सेस ऑफ टी, कॉफी, ये सब क्या है? व्हाई टू टेक ऑल दिस थिंग? हमारे मुंह कोई फैक्ट्री है क्या तो मुंह से धुआं निकल रहे हैं? सिगरेट पी के धुआं निकलते रहते हैं। हमारे मुंह से तो लोगों के लिए दुआएं निकलनी चाहिए, ना कि धुआं निकलनी चाहिए। और पार्टी करेंगे, शराब पियेंगे, फिर सारा अनसोशल एक्टिविटीज होगी, ये सब बिल्कुल दूर रहना है बच्चे, नहीं तो देखना जिंदगी खराब हो जाएगा। अनहेल्दी सराउंडिंग, चारों तरफ बताया कि सब गंदगी फैलाते रहते हैं, सब कचरा इधर उधर। विदेश जाइए देखना सब डस्टबिन में ही डालते हैं, कोई नहीं। ये हैबिट्स है, ये सब हमारे भारत के लोग ही। विदेश जाएंगे तो एकदम सुधरे जाएंगे, उधर एकदम पूरा सुधर के चलेंगे। इंडिया आएंगे तो सब कचरा। ट्रेन में जाओ तो देखो वहाँ गंदगी, जहाँ जाओ गंदगी। अरे भाई अब तुम खुद रहते हो, तुम्हारे बाद फिर दूसरा कोई आके बैठेगा, भाई यू आर स्पॉइलिंग दिस थिंग। तो अनहेल्दी सराउंडिंग्स, इसलिए सारा इन्फेक्शन, सारी इतने बीमारियां हो रही। अनहेल्दी रिलेशन एंड नेगेटिविटीज, तो घर में भी आपस में रिलेशन हमारा ठीक नहीं है, जहाँ ऑफिस में जहाँ भी जाओ आपस में हमारे फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं है, गुड विशेस नहीं है, सबके प्रति घृणा, नफरत, ईर्षा, बैर, विरोध और फुल ऑफ नेगेटिविटीज। इसलिए लोगों को ये सब बीमारियां हो रही है। These are the 10 unhealthy lifestyles actually. So unhealthy sleeping habit, देखिए इतना मोटू रात को टीवी देखते देखते सोफा में सो गया, और रिमोट कंट्रोल कहाँ रखा है? पेट में। खर्राटा लगाते समय पेट जंप करता रहेगा तो मोबाइल रिमोट कंट्रोल भी जंप करता रहेगा। This is called unhealthy sleeping habit. Do you know both excess and inadequate sleep can cause diabetes, hypertension, many diseases. तो बहुत ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, कम सोना भी ठीक नहीं। 4-5 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 4 से 6 घंटा स्लीप इज एडिक्वेट। जो कम सोएगा काम करते करते ऐसे उबासी खाता रहेगा। ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है, कम सोना भी ठीक नहीं। तो इसलिए you should take care of all this. And unhealthy eating habit, बहुत ज्यादा खाना भी, बैठे बैठे बात करते करते खाना, टीवी देखते देखते खाना, जल्दी जल्दी खाना, ये सब अनहेल्दी ईटिंग है। नहीं, जब खाना खाते हो साइलेंट एकदम चुपचाप होके शांति से अच्छी तरह से चबा के खाओ। आपके दांत सामने सामने, भगवान ने हमारे मुंह के सामने सामने दांत रखे हैं, किस लिए? कि अच्छी तरह से चबाना है। जल्दी जल्दी खा लोगे तो पेट के अंदर दांत है क्या, तो उसका फिर हजम नहीं होगा, बदहजमी होगी।
तो जो भी खाते हो अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, आपस में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करते करते खाओगे ना, एक्सीडेंटली फूड पार्टिकल अगर एयरवे में घुस गया तो पूरा चोकिंग होकर डेथ हो जाता है कितने लोगों का। बी केयरफुल। तो हम आपस में बातें करते करते नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, शुगर भी होगा, डायबिटीज हो जाएगा। देखो, और कितना खाना चाहिए, कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए। लोग इतना खा जाते हैं कि और ही करेंगे सारा गैस डिस्पेल होने तक, करने से दिखेगा उनका क्या खाया। कितनी चीजें रखी है देखो, इतनी मोटी क्या क्या रखी है, कितनी सारी चीजें, इतना खाई कितनी मोटी हो गई देखो। हमें हमारा बॉडी वेट आइडियल होना चाहिए। हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर 1000 बीमारियां होंगी। आपका बॉडी वेट हाइट के अनुसार आप एक बार टेस्ट करके अपने डॉक्टर को पूछ लेना कितना होना चाहिए। जो एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो फॉर्मूला है हाइट इंटू सेंटीमीटर माइनस 100। आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है उसमें 100 माइनस कर दो, जितना बचा उतना किलो होना चाहिए एडल्ट्स के लिए। लेकिन बच्चों के लिए अलग होता है, आप अपने डॉक्टर से पूछ लेंगे, फॉर्मूला आपको काउंट करके बता देंगे कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा नहीं खाना, कम कम खाओ, 3-4-5 बार खाओ, लेकिन एक ही साथ ज्यादा जो खाता है वो वेट भी बढ़ता है और उसका शुगर भी बढ़ता है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल मेहनत कोई नहीं करता, बैठे बैठे कंप्यूटर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप, सब बैठे बैठे सब काम करते रहते हैं, मेहनत नहीं। तो जिसके कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है। बच्चे एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सारा दिन भी फिजिकली घर की सफाई करो, ऑफिस की सफाई करो, स्कूल की सफाई करो, कुछ ना कुछ मेहनत करो। बैठे रहने से ही सारा बीमारी है। सो प्रोलॉन्ग सिटिंग इज हैजार्डस। जो 3.5 घंटा से ज्यादा समय बैठता है दिन में, उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही है। इसलिए कंटिन्यूअसली लंबे समय नहीं बैठना है। 1 घंटा बैठने के बाद उठ जाना थोड़ा सा, फिर बैठो भले, लेकिन लंबे समय तक लैपटॉप में काम करते रहना, बैठे रहना, वो ठीक नहीं। रोज हमें इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। अनहेल्दी फूड, आज बाजार में क्या क्या सारी गंदी चीजें मिलती रहती है, ये सब हम खा रहे हैं सब, इसमें कितने कैंसर प्रोड्यूसिंग चीजें हैं ये सब जानते हैं। इस हॉट डॉग कहते हैं लोग, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं, हॉट डॉग, क्या क्या सारी गंदी चीजें इसमें। फ्रेंच फ्राइज को हम कैंसर फ्राइज कहते हैं। ये चिप्स, आप एक जो बनाना चिप्स आता है मार्केट में, एक चिप को जला के देखना, उसमें थप 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 एक चिप में 30 बूंद तेल निकलेगा। ये सब ट्रांस फैट है इसमें, बाहर से तली होके आते हैं, ये सब खाएंगे हार्ट अटैक होगा। बर्गर में बताया 10 ग्राम नमक होता है, कितने ट्रांस फैट, क्या क्या चीजें, डाउन, ये सब अनहेल्दी चीजें हैं। दीज आर कैंसर प्रोड्यूसिंग फूड। तो बच्चे इससे दूर रहना है, कभी कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में बनाओ, खाओ, घर में जो चीजें अच्छी है, हेल्दी है, रोज खाओ। अनहेल्दी है, देखना भी नहीं। तो ये सब चीजों से दूर रहना है। अनहेल्दी ड्रिंक्स भी बताया, ये सब चीजें बहुत डेंजरस है। आपको यकीन नहीं है तो इफ यू सी ए स्कॉर्पियन, आप कभी एक स्कॉर्पियन देखते हो तो आप उसको उठा के एक बर्तन में रखना। मेरे पास तो वीडियो है, आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन सुन लीजिए। और एक व्यक्ति ने एक कटोरी में, एक पतीला में एक स्कॉर्पियन को लिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो स्कॉर्पियन तैरता रहा, कुछ नहीं हुआ, पानी को फेंक दिया। उसके ऊपर जैसे ही एक कोका कोला बोतल खोल के डाल दिया, 5 सेकंड के अंदर मर गया। 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड के अंदर मर गया। वो कोल्ड ड्रिंक पिया भी नहीं, खाली उसके ऊपर डाल देने से मर गया। स्कॉर्पियन बाइट करता तो हम मर जाते हैं, तो स्कॉर्पियन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालने से अगर स्कॉर्पियन मर जाता है, तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते क्या पी रहे, सोचो। दीज आर ऑल पॉइजन्स। नेवर नेवर। ये बड़े बड़े जो हीरोज हैं, स्टार्स हैं, उनको करोड़ों रुपया मिलता है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, लेकिन हमको क्या मिलेगा? बीमारियां। सब टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं। जब भी मूड करता है, नींबू पानी पियो, फ्रूट जूस पियो, गन्ने का रस पियो, नारियल पानी पियो, हेल्दी है, ठीक रहो। क्यों पीना है ये सब चीजें? विदेशी लोग ये सब डंप करके हमको बीमारी बन कर रहे हैं। मैं आपको ये सब क्यों सुना रहा हूँ जानते हो? WHO, World Health Organization, International Diabetes Federation, American Medical Association, they are telling our kids may die before us. पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं, कान खोल करके सुनिए। पहले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां ओल्ड एज में होता था। आजकल बच्चे ये सब गार्बेजेस खा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को टीन एज भी नहीं हुआ है, ये सब बीमारियां शुरू हो गई। आप अगर बच्चों को बचपन से ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ये सब नहीं सिखाओगे, हेल्थ के बारे में,
तो आप भी खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे नेचुरली। आपको 50 साल में डायबिटीज हुआ तो बच्चों को 15 साल में होगा, होना ही 100%। तो उनका लाइफस्टाइल अगर चेंज नहीं करोगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके उनका नहीं करोगे तो, और किड्स दे में डाई बिफोर अस, हमारे सामने मरेंगे, हमसे पहले मरेंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, WHO बोथ आर टेलिंग एजुकेट एजुकेट एजुकेट। बच्चों को एजुकेट करो, हेल्थ के बारे में उनको नॉलेज नहीं, सब टीवी देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के, सब ऑनलाइन फूड मंगा के खा रहे हैं। ये सब बहुत नेस्टी, बहुत अनहेल्दी हैबिट्स है, इसको चेंज करना है। एंड दिस कॉम्पिटिटिव एंड मेटेरियलिस्टिक गोल, लोग जितना दिन रात जितना ये सब टारगेट अचीव करने के लिए लगे रहते हैं, स्ट्रेस होता है, फिर बहुत डेंजरस है। बच्चों को जो आजकल जो बहुत पैसा कमाता है उसको सक्सेस मानते हैं लोग। बच्चे भी अगर कंपटीशन में आगे जाके एकदम बिल्कुल टॉपर बना तो उसको पेरेंट्स बहुत वाह करेंगे। लेकिन आपका बच्चा टॉपर भी बन गया लेकिन चरित्रहीन है, तंबाकू अल्कोहल सब संगदोष में आके सब गंदा काम करता है, क्या उसको सक्सेसफुल कहेंगे? लेकिन आपका बच्चा एक सिंपल, बहुत एकदम टॉपर नहीं है, कहीं भी बहुत पैसा नहीं भी कमाता है, लेकिन सोशली बहुत रेस्पेक्टेबल है। एक मान लीजिए कहीं टीचर बना है तो टीचर को सारे स्टूडेंट सब लाइफ लॉन्ग याद करेंगे, उसको जब भी देखेंगे कहीं सैल्यूट करेंगे। वो सक्सेस कहेंगे कि आप कोई टॉपर बन के कोई ऑफिसर बन गया, कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर बन गया, कि IAS अफसर भी बन गया, टॉपर भी बन गया, लेकिन चरित्रहीन होके सारा ड्रग एडिक्ट है, टबाको एडिक्ट है और सबको टर्चर करता है, ब्राइब लेता रहता है, उसको सक्सेस कहेंगे? नहीं। तो पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, बच्चा पैदा करना तो पशु पंछी जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर लिए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बच्चों को चरित्रवान बनाकर, आदर्श बनाकर, एक अच्छा इंसान बनाकर, अच्छे संस्कार देकर उसके पाँव में खड़ा कर देना पेरेंट्स का उत्तरदायित्व है, ना कि खाली उसको अच्छा एजुकेशन देके टॉपर बना दिया लेकिन चरित्रहीन है। क्या मतलब है? और मैं तो हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को, जब तक बच्चे सेंसिबल होके, समझदार होके, जब तक अपने पाँव में खड़े नहीं हो जानते हैं, उनको अपने से दूर नहीं रखना है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को हॉस्टल में रख देते हैं। हॉस्टल में क्या सीखेगा, क्या संस्कार मिलेगा बच्चों को? भले आप लाखों रुपया भेज रहे हो हर महीना, वो बच्चा, मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ बच्चे कैसे बिगड़ते हुए निकलते हैं। और वो भी फिर आप जब ओल्ड हो जाओगे तो बच्चे भी कहेंगे तुम भी हमको हॉस्टल में रखा था ना, तुम भी जाओ ओल्ड एज होम में रहो, मैं भी पैसा भेज दूंगा। हमारे देश में ओल्ड एज होम था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। आज कितने ओल्ड एज होम है, क्योंकि हम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बच्चे भी हमको भी ऐसा कर रहे हैं। तो हमें ये सब समझना जरूरी है। हमें बच्चों को कंपटीशन में लाके एकदम उनको डिस्करेज कराते रहेंगे, सब पूरा ये करेंगे तो बच्चे फिर बहुत कम एज में स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सब नहीं करना है। और ओवरवर्क, बहुत ओवरवर्क, आजकल बच्चों की लाइफस्टाइल देख लो कैसा है। तो स्कूल से आए कि नहीं, तुरंत ही जाके ट्यूशन पढ़ना है, फिर ये करना है, वो करना है, सारा इतना बिजी। बात मत पूछो, देयर शुड बी बैलेंस इन एवरीथिंग। हमें एकदम टू मच उनको बिजी करके किया, खुद भी बिजी रह के तो स्ट्रेस पालते पोसते रहते हैं, फिर सब बीमारियां होती है। तो ओवरवर्क भी ठीक नहीं है। ये सब अनहेल्दी हैबिट्स बता रहा था, दीज आर वेरी बैड। बच्चों को पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, दिन रात हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को कौन देख रहेगा? आया भाई, फिर संबंधों में आके ये सब। एक बार हमारे हॉस्पिटल में पेरेंट्स आते हैं रिटायर्ड एज में, अपने यंग बच्चों को लेके आते हैं, रोते रोते कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चे हमको पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देते तो रिटायर्ड एज में हमको मारते हैं, प्लीज इनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी सिखाओ इनके। अब जब बच्चे छोटे थे उनको आपके पास टाइम नहीं था, पेरेंट्स दिन रात अपने पैसा पैसा पैसा। अरे कहावत है, पुत सपूत है तो धन किस लिए रखते हो, पुत कपूत है तो धन किस लिए रखते हो। आप अगर बेटा सुपुत्र होगा तो वो पैसा कमा के आपको देगा, और बेटा कुपुत्र हो गया तो जितना भी करोड़ों रखे हो सब दारू पी के, शराब पी के, जुआ खेल के खत्म कर देगा। तो बच्चों को चरित्रवान बना के, अच्छे संस्कार देके, संगदों से बचा के, ऐसे हैबिट से उनको बचा के, उनको समझदार बना के अपने पाँव में खड़ा कर देना, वो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हमें ये सब समझना जरूरी है। ये सब चीजें देखिए बहुत नुकसानकारक है हेल्थ के लिए, दे आर वेरी नेगेटिव इफेक्ट। शुरू में शौक में तो इंसान सिगरेट पीता है, बाद में सिगरेट इंसान को पीता है। फिर शुरू में
ये सब तम्बाकू, पान पराग ये सब खाते हैं लोग शौक से, फिर बाद में कैंसर हो जाता है, फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, फिर पता चलता है हार्ट अटैक हो जाता है। एक्सेस ऑफ टी कॉफी पीना भी ठीक नहीं है, ये भी हेल्थ के लिए नुकसान कारक है। ऑनली सराउंडिंग्स बता रहा था, कितने गंदगी चारों तरफ हमारे देश। मुझे तो शर्म आता है, सच बता रहा हूँ। हम लोगों को सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, जहाँ तहाँ फेंकते रहते हैं। ये सब बहुत गलत आदतें हैं। अनहेल्दी रिलेशन, आजकल देखना घर घर में ऐसा हालत हो गया है, पेरेंट्स ही अगर आपस में रिलेशन ठीक नहीं है तो बच्चे कैसे ठीक हो सकते हैं। तो घर में हम मिलजुल के प्रेम प्यार से रहें। आजकल देखो कैसे हालत है सब। तो जहाँ पेरेंट्स ही आपस में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब होगा। तो हम घर में शांति से प्यार से सब मिलजुल के रहें, रिलेशन हमारा अच्छा हो, तब कहेंगे। और नेगेटिव्स है, लॉस्ट है, एंगर है, ग्रीड, एटिस्मेंट, ये सब दीज आर ऑल सोर्स ऑफ ऑल डिजीज। गुस्सा करते हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। आज लोग के कारण पैसा कमाने के लिए लोग कितना एडल्ट्रेशन, करप्शन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दवाई भी मिलावट कर रहे हैं, सब नकली चीजें बेच रहे हैं। तो ईगो इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग्स। तो ये सब नेगेटिविटीज भी हमारे जीवन का बहुत नुकसान कारक है। सो व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, योर इकोनॉमी इज लॉस्ट। When health is lost, your enthusiasm is lost. When health is lost, your enjoyment in life is lost. Your entertainment in life is lost. Your sense of well-being, euphoria is lost. Your efficiency, work efficiency is lost. Your effort is lost, and energy is lost, and everything is lost. I can tell you, everything is lost, and the whole essence of life is lost. When health is lost, the whole essence of life is lost. But when you are healthy, you are cheerful, you are loveful, you are beautiful, you are peaceful, you are blissful, you are joyful, and you are successful. So when you are healthy, you are full in every respect. You radiate like a blossoming flower. You become a full. ऐसे भी हिंदी में भी फूल कहा जाता है ना, खूबसूरत खुशबूदार फूल जैसा बन जाओगे। तो इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे अच्छी स्वास्थ्य दो। मांगते ना नहीं, तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे बच्चे स्वास्थ्य कोई चीज तो नहीं है जो तुमको दे दूंगा। एवर हेल्दी लाइफ इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम्हें सदा स्वस्थ जीवन, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कैसे रह सकते हो? एडॉप्ट स्पिरिचुअल एंड योगिक लाइफस्टाइल। तुम अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तुम्हारा जीवन शैली को तुम बर्बाद कर दे हो, इसको तुम स्पिरिचुअली हेल्दी बनाओ, योगिक लाइफस्टाइल। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है योगी, दूसरे है भोगी। जो भोगी है वो रोगी है, जो योगी है वो निरोगी है। तो भगवान इसलिए कहते हैं योगी बनो, ज्ञानी बनो। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, द ग्रेट स्क्रिप्चर। इन श्रीमद् भगवत गीता गॉड हैज एडवाइज्ड, God is telling, out of millions and millions of people of the world, those who are yogi, I love them. जो योगी होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए योगी बनो, ज्ञानी बनो। So adopt spiritual lifestyle and yogic lifestyle. What is that spiritual lifestyle and yogic lifestyle? It is a positive and healthy lifestyle. So what is that I am telling you? There are few aspects I will tell about that. So let us change our lifestyle and change our life. तो हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे, लेकिन जीवन ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। You'll be healthy, you'll be happy, and you'll be wealthy, you'll be prosperous. आप जीवन में सदा एकदम cheerful, blissful, successful हो जाओगे। So let us change our lifestyle. So I will tell about certain things. I'll explain about all these things also. So first thing, you change your lifestyle, early to bed and early to rise. 10 साढ़े 10 मैक्सिमम सो जाना चाहिए और 3:30-4 बजे उठना चाहिए। उठ के बच्चे आप पढ़ोगे तो देखना सारा दिन 10 बार पढ़ोगे, जितना मेमोरी आप याद नहीं रखोगे। आप सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, देखना एक बार पढ़ोगे तो आप प्रिंट हो जाएगा एकदम बुद्धि में। तो आप बुद्धिमान बनोगे, शक्तिवान बनोगे, धनवान बनोगे। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। सवेरे सवेरे उठ के अच्छी तरह से मेडिटेशन करो, सीखो मन में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि when you think negatively you drain out, when you think positively you conserve energy. Meditation is the art of healing yourself. Medri means, meditation has come from a word medri. Medri means to heal. And balanced and vegetarian diet, physically active life and exercise,
healthy relation and happiness in life, purity of thoughts, words and action, fear no evil, see no evil, talk no evil, and good hygiene. These are 8 aspects I will talk about. So first thing, they early to bed and early to rise. तो जो सवेरे सवेरे उठते हैं, देखना एकदम नेचर कितना कूल, काम, जेंटल ब्रीज, कितना एकदम अच्छा रहता है. जो लेट उठता है क्या होगा, सब लेट, जल्दीबाजी करेगा, सब बाद में हड़बड़ी फिर स्ट्रेस होगा उसको. तो सवेरे सवेरे उठना बहुत अच्छा आदत है. बच्चे कभी भी लेट तक जागना नहीं, लेट तक सोना नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं if your sleep is not adequate and you have a wrong habit, then what will happen? Open your eyes for its repercussion. What will happen? I was telling, it causes both diabetes, heart disease, so many diseases. So now there are plenty of evidences. Inadequate sleep may increase your high blood pressure risk up to 50%, diabetes up to 28%, obviously 35%, depression risk. So those who have inadequate sleep, either excess or less, they are having all these stages. So a sound and undisturbed sleep of 5 to 6 hours at night is a must. The stress hormones released from the brain are quite less in individuals who have good sleep between 10 p.m. to 4 a.m. These are the research studies. The scientists they are telling. So रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, ठीक है? So don't ignore your sleep. A sound sleep at night is a must for good health. अब दिन में कितना भी सो कॉम्पेंसेट नहीं होता है, रात की नींद नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन. पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन. व्हाई पॉजिटिव थिंकिंग? बिकॉज इट एम्पावर्स यू. इफ यू थिंक पॉजिटिवली, यू कंजर्व एनर्जी, देन इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. आप देखे होंगे कैटरपिलर कितना गंदा लगता है, लेकिन वो लार्वा प्यूपा में ट्रांसफॉर्म होकर जब तितली बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है, सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. So जिसके लाइफस्टाइल गंदा है वो कैटरपिलर जैसा, nobody will like him. But if you change your lifestyle, transform yourself, then you'll be loved by everybody. So it will transform your life. So a positive thinking evokes more energy, more initiative, more happiness. A positive mind is your true friend, your mate. How? As you think, so shall you become. आप जैसा सोचोगे ऐसा ही बनोगे. देखो, सेम लड़की इस साइड में रो रही है, इस साइड में हंस रही है. Why? क्यों रो रही है? क्या मन में अच्छे विचार चल रहे हैं? नहीं. She is thinking negatively, that's why she is crying. She is thinking positively, that's why she is laughing. आप कैसा दिखना चाहते हो? आज मेजोरिटी लोगों के चेहरा देखो कैसा, बिल्कुल ब्लैंक फेसेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं. और नहीं तो ऐसे नेगेटिव सोच के स्ट्रेस को लेकर. तो जीवन में थोड़ा चेयरफुल होंगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा, सबको भी खुशी मिलेगी. तो पॉजिटिव थॉट्स इसलिए चाहिए. योर माइंड इज योर फ्रेंड, योर माइंड इज योर एनिमी ऑल्सो. मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है. मन को क्या बनाना चाहते हो? मन को अगर शत्रु बनाया, इट विल किल यू. मन को मित्र बनाया, इट विल हील यू. आज एक व्यक्ति सुसाइड करता है. क्यों सुसाइड करता है? उसके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, नेगेटिव सोचता है, इसलिए तो सुसाइड कर लेता है. सो ए नेगेटिव माइंड किल्स, वेदर ए पॉजिटिव माइंड हील्स. आपके बॉडी में बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बहुत सारे एंडोर्फिन्स, बहुत अच्छे हार्मोन बनेंगे, तो यू बिकम हेल्दी. तो पहले हमारे मेमोरी होती है, स्मृति. पहले जो सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो सब हमें याद आता है. उसी अनुसार हमारे दृष्टिकोण बनता है, एटीट्यूड बनता है. तो जैसा दृष्टिकोण होता है ऐसे सोच चलता है, जैसा सोच चलता है फिर हमारे इमोशंस भी ऐसे होता है. तो ये सबको पॉजिटिव जब बनाएंगे तो ही हमारे अंदर हीलिंग शुरू हो जाएगी. सो हाउ टू सेट द माइंड फ्री फ्रॉम ऑल रबिश एंड एनलाइटन योरसेल्फ. आज देखना सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, सब नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव सारे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं. बच्चे पैदा होते ही वीडियो चलाना शुरू हो गया है उनको सीखे. तो ये सब आप टीवी खोलते ही देखना, सारा दिन का सब नेगेटिव समाचार. आप न्यूज़पेपर देख लो, सारा नेगेटिव समाचार. तो सारा दिन का नेगेटिव जब दिमाग में डालेंगे, क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं? हमें कैसे पॉजिटिव बनना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन इज द रियलाइजिंग द सेल्फ एज ए सोल एंड रिमेम्बरिंग द स्वीटेस्ट फादर सुप्रीम सोल. आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ये पॉजिटिव थिंकिंग है. शुभ चिंतन करो, सबका भला सोचो. तो मेडिटेशन is the art of positive thinking.
it teaches all the things. Then only you can be free from all negativities in life. So God is one. So if you want to learn meditation, you have to understand who is God, and you have to remember Him. You have to connect with Him so that He will give you power. Meditation gives power. That's why Swami Vivekananda is told, meditation के बाद इतना tremendous energy you can feel yourself. So a yogi experiences tremendous energy from God. So because you need energy to prevent your weaknesses, wrong habits, and to continue your good things, good action in life. जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए भी you need power, बुरे कर्मों से बचने के लिए भी you need power. तो इसलिए भगवान को हम मांगते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो. So to empower yourself, you learn meditation. And who is God? God is one. Who is God? God is Shiva. That's why हमारे देश में जब कोई भी मंदिर नहीं था, आज से 2500 साल पहले भारत में ज्योतिर्लिंगम, द सिंबल ऑफ डिवाइन लाइट, जैसे आत्मा एक डिवाइन लाइट है, इन आंखों से नहीं देख सकते हो, परमात्मा भी एक डिवाइन लाइट है, हम उनको भी नहीं देख सकते हो. तो उनका एक सिंबल बना के एक दिया जैसा दिखना, ये ज्योतिर्लिंगम का सिंबल दिखना, एक दिया जैसा. घर घर में हम पहले दिया जलाते थे, बीच में तेल होता था, बाती होती थी, उसमें जो फ्लेम जलता था वो वाल सेपरेट, ऐसा एक ज्योतिर्लिंगम बना के भारत में घर घर में पूजा करते थे आज से 2500 साल पहले. भारत का सबसे प्राचीन मंदिर देखिए सोमनाथ मंदिर है. राजा विक्रमादित्य और डायमंड हीरा का ऐसा शिवलिंग बनाए थे, ज्योतिर्लिंगम बनाए थे, सोमनाथ मंदिर बनाए थे. आप मोहम्मद गजनवी आके कितने बार 17 बार सब लूट के ले गया, वहाँ कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात था. तो भारत एक समय था जब परमात्मा को ज्योति के रूप में सब पूजा करते थे. आज देखना हर धर्म में परमात्मा को ज्योति मानते हैं. क्रिश्चियन धर्म में इफ यू गो टू ए चर्च देयर इज नो आइडल, कोई मूर्ति नहीं है. गॉड इज लाइट, लेट काइंडली दाओ लाइट. मुस्लिम मस्जिद में जाओ, कोई मूर्ति नहीं है, वहां भी कहते हैं अल्लाह नूर है, खुदा नूर है. सभी धर्मात्मा महात्मा कह के गए हैं परमात्मा ज्योति है, लाइट है, और वो ज्योतिर्लिंगम, और उनका नाम खुद वो बताते हैं, बच्चे मेरा नाम शिव है क्योंकि मैं कल्याणकारी हूँ. इसलिए शिव माना कल्याणकारी, सदा शिव कहा जाता है, सबका भला सदा करते हैं, वही परमात्मा है. इसलिए हम शिव परमात्मा नमो कहते हैं, और किसी को परमात्मा नमो नहीं कहता है. बाकी राम देवाय नमो, कृष्ण देवाय नमो, विष्णु देवाय नमो, गणपति देवाय नमो, देवी देवाय नमो, लेकिन सभी देवताओं का ईश्वर शिव है, इसलिए देवेश्वर कहा जाता है. सर्व पाप हर हर पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर कहा जाता है. तो गॉड इज शिवा. तो उनको ही याद करने से ही हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर शक्ति आएगी. तो परमात्मा को, शिव बाबा को प्यार से उनको बाबा कहते हैं, इज आवर फादर, गॉड फादर. तो उनको याद करने का नाम मेडिटेशन है. So meditation is a science of empowering the self. I was telling Swami Vivekananda is told, a yogi after meditation feels as if he can engulf the entire ocean of Shakti Himalayan. तो सारा समुंदर को पी जाऊंगा, हिमालय को उठा के फेंक दूंगा, इतना ट्रेमेंडस एनर्जी यू फील. सो लर्न मेडिटेशन. Meditation is the science of self-realization, and self-realization brings self-transformation. So when you realize yourself, who are you, then you change yourself. आज ये देखो लड़की चेहरा कैसा था जब सी स्टार्टेड रियलाइजिंग हरसेल्फ, चेंज हो गया. सो व्हाट डू यू कमेंट दिस पिक्चर, व्हाट आर यू सीइंग हियर? एक मिरर है, सामने एक बिल्ली बैठी है, और बिल्ली और मिरर में एक शेर का चेहरा देख रहा है. क्या मतलब? आज तक हमने स्वयं को ऐसे बिल्ली समझते थे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, तुम शेर के बच्चे शेर हो. You are not ordinary human beings. You are my children. जैसे एक करोड़पति का बेटा करोड़पति होगा ना, एक राजा का बेटा राजकुमार होगा ना, तो हम आज भूल गए थे भगवान से हमारा क्या रिलेशन है. भगवान हमारे पिता हैं, और भगवान विश्व कल्याणकारी हैं, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है. हम कैसा होना चाहिए? उनके बच्चे हैं तो हम भी ये सब गुणों से भरपूर हो जाना चाहिए. लेकिन हम भगवान को पहचानते नहीं, जानते नहीं, तो अपने आप को बहुत साधारण समझ लेते, अपने आप को पतित, खल, कामी, हीन, कपटी सोच लेते, और भगवान को मांगते रहते, हे प्रभु मुझे शांति दो, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो.
एक करोड़पति का बेटा रोज कहे पापा मुझे एक चमन दे दो, 1 रुपया दे दो, 8 आना दे दो, तो उसके पापा के लिए इंसल्ट है कि नहीं? पापा क्या कहेगा, अरे बेटा मेरे पास जो कुछ है तेरे लिए तो है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, सो रियलाइज योरसेल्फ हु आर यू। आप परमात्मा के बच्चे हो, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता शांति का सागर है तो मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मेरे पिता पवित्रता का सागर है तो मैं भी पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। मेरे पिता इतने महान है तो मैं ऐसे गंदा काम कैसे कर सकता हूँ? एक बहुत ऊंच कुल का बेटा होगा तो वो हमेशा सोचेगा मैं खराब काम करूंगा, मेरा बाप का नाम बदनाम होगा, नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हम जब अपने आप को रियलाइज करते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ तो कभी खराब काम कर ही नहीं सकते जीवन में। सो लेट अस मेडिटेट एंड रिमेन एवर हेल्दी एंड एवर हेल्दी, ओके? Because stress is a burning problem of the 21st century. Stress is a proxy killer, number 1 proxy killer. आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, इस सब का कारण देखना तो स्ट्रेस है। सो मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। सो प्रैक्टिस राजयोग मेडिटेशन। सभी बच्चे मेडिटेशन सीखो, देखना आपका मेमोरी कितना शार्प हो जाएगा। आप बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे तो भी देखना सब विजुअलाइज हो जाएगा, सब मेमोरी हो जाएगा एकदम। आप चरित्रवान बनेंगे, आदर्श बनेंगे, अनुकरणीय बनेंगे। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। क्या खाते हो? मनुष्य की खाद्य रुचि से ही तो उसके व्यक्तित्व की पहचान मिलती है। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है, जैसे गाड़ी में आप राइट फ्यूल डालते हो, लेकिन आजकल लोग देखो क्या क्या डाल रहे हैं। आप पेट्रोल गाड़ी खरीद के उसमें अगर आप केरोसिन, नारियल तेल, मूंगफली तेल डालेंगे क्या हाल होगा? तो आजकल क्या क्या खा रहे हैं? आज देखो सारा ह्यूमन बीइंग इज नॉट कार्निवोरस, हम मांसाहारी प्राणी नहीं है। जैसे शेर है, बाघ है, ये सब मांसाहारी प्राणी है, ये सब दूसरे जानवरों को खाते हैं। हम ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े दांत नहीं है, फिर भी हम गंद चीजें खा रहे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े नाखून नहीं है दूसरे किसी को अटैक करने के लिए, फिर भी हम क्या क्या खा रहे हैं, तो कैसे हेल्दी रहेंगे? तो इसलिए हमें बिल्कुल दूसरे जीव जंतु को मारना ये तो ठीक बात नहीं है। तो हम हर्बीवोरस हैं और हम खा रहे हैं सब गंद चीजें। सो मैं कहता हूँ ओ मैन, वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? आज मानविकता कहाँ है? दूसरे पशु पंछी जानवर को हम मार रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं। हमारे बच्चे को कोई मार के खाए तो हमको कैसा लगेगा? वो हमसे कमजोर है इसलिए उसको मार के खाएंगे। भगवान ने हमको इतने सारे प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दिए हैं, क्यों खाना है हम किसी को मार के? और जब कोई जानवर को मारते हैं, he liberates all the toxins from his body, वो टॉक्सिन सब हमारे बॉडी में आएगा तो क्या होगा? सोचिए तो सही। So do you feel the right type of fuel in your body car? Of course not. आज दुनिया में ये सब खा रहे हैं, सब बताया, हॉट डॉग, ग्रेट बर्गर किंग, डोनट, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग चीजें हैं। ये सब बिल्कुल टच नहीं करना बच्चे आजकल, मैं बता रहा हूँ। और ये देखा गया है कि सब जो मैकडोनल्ड प्रोडक्ट्स बाहर में जो मिलता है आजकल, सब विदेशी चीजें, इट इज फुल ऑफ ट्रांस फैट्स। और 2% ट्रांस फैट भी हमारे फूड में कम हो जाता है तो 53% हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो हम क्यों खाएं ऐसा? बच्चों को खिलाएंगे, बहुत कम एज में उनको हार्ट अटैक होगा 100%। इसमें ये फास्ट फूड, जंक फूड में कितने प्रिजर्वेटिव्स है, हाई कैलोरी है, फैट, सोडियम ज्यादा है, फाइबर बहुत लो है, इसलिए ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सब बीमारियां शुरू हो रही है। इसलिए ये सब चीजों से दूर रहो। चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। हमारे डाइट में ऐसा होना चाहिए। यूजुअली हमारे भारत में क्या करते हैं, एकदम जो ट्रे में ना 75% चावल चपाती ला देते हैं, ये गलत है। ऐसा होना चाहिए, मैं चावल चपाती कम खाएं, मैक्सिमम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब्जियां, सलाद, ये सब खाना चाहिए। दाल ज़्यादा खानी चाहिए, बट कर्ड ले लीजिए, बटर मिल्क बना दीजिए, नींबू ले लीजिए, बैलेंस डाइट, ठीक है। सो दिस द फूड पिरामिड। मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल होना चाहिए, अनाज और थोड़ा कम, प्रोटीन और थोड़ा कम, सबसे कम तेल, घी, मक्खन, बटर, आइसक्रीम, ये सब चीजें जितना कम हो सके। सो टू लेंथन द लाइफ, लेसन द लाइफ। जो कम खाता है तो दीर्घायु रहता है, जो ज्यादा खाता है फिर मोटे हो जाता है, फिर 1000 बीमारियां शुरू हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकली एक्टिव लाइफ एंड एक्सरसाइज। हमें दोनों चाहिए, एक्सरसाइज भी करना है, सारा दिन एक्टिव भी रहना, तो जाके हम हेल्दी रहेंगे। सो व्हाई एक्सरसाइज, आज एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है बताया था सर। गाड़ी जैसी है, गाड़ी को आप चलाओ नहीं, खाली गैरेज में रखे रहो, जंक हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर को भी जैसे गाड़ी को चलाना होता है, शरीर को भी चलाना होता है। इसको नहीं चलाओगे तो फिर स्टिफनेस होगा, अनेक बीमारियां शुरू हो जाएगी। आजकल हम सभी चाहे ऑफिस का काम में बिजी, चाहे घर का काम में बिजी, सब ऐसे काम में बिजी जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके कारण सारी बीमारियां। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइज? व्हाट इज एक्सरसाइज? Exercise is voluntary and repetitive movement of a group of muscles for a period of time. आप देखिए ये नी एल्बो एक्सरसाइज कर रही है, ये एब्स के लिए बहुत अच्छा है, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज, ये पुशअप लगा रहे हैं, आपका शोल्डर जॉइंट आर्म के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट, आजकल 4 प्रकार का एक्सरसाइज बताया जाता है, एरोबिक, एनारोबिक एंड आसन एंड प्राणायाम। तो इसमें से चारों प्रकार का एक्सरसाइज इंडिविजुअली कोई कंप्लीट नहीं है, हमें सब मिला के करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज बेस्ट नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाती है। आजकल आसन करते हैं लोग, बहुत फैन है लोग आसन के, लेकिन क्या ऐसा सब कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल। माताएं हमारे कर सकते हैं, बहुत कम एज में कोई अगर स्टार्ट करता है तो कर सकता है, लेकिन बाद में ये सब होता नहीं है। अगर ऐसा कर लिया, याद रखना टंग उतरेगा नहीं। अभी बच्चे तो कर सकते हैं ऐसा करना चाहते हैं तो, लेकिन पेरेंट्स अगर ऐसा कर देंगे इस उम्र में, ऐसे ही रह जाएगा, उतरेगा नहीं। ये सब हर एक के लिए संभव नहीं है। ये सब कपालभाति आदि, ये भी अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम होगा। हमारे माउंट आबू में रामदेव बाबा आए थे, कहते मैं जब यंग था एकदम नशे में, लोगों को 1 मिनट में 100 बार कपालभाति, देखा कि सबका बीपी एकदम सूट हो गया। धीरे धीरे तो धीरे धीरे। तो ये सब हर के बस की बात नहीं है, और हमें जानना जरूरी है कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। एंड एनारोबिक, आजकल बच्चे बहुत फैन है, जिम में जाएंगे और थोड़ा सा मसल्स हो गया, फिर मार पीट दंगा हंगामा शुरू कर देते। खाना पीना कोई कंट्रोल नहीं, सब रबिश खाते रहते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर जिम में कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जा जिम, कहते आई डोंट नीड एक्सरसाइज। तो आजकल बच्चों के अंदर थोड़े से पावर हो गया, देखो फिर कितने एंटी सोशल एक्टिविटीज, सब ड्रग एडिक्ट होकर क्या क्या सब करते हैं। तो इसलिए हमें बचना है, ये सब चीजें जरूरत नहीं है। वॉकिंग, सिंपल एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे जो मॉर्निंग वॉक करता है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द एंटायर डे। हमारे देश में ऋषि मुनि सब मॉर्निंग वॉक करते थे भगवान का नाम लेके। तो सवेरे सवेरे थोड़ा ब्रिस्क वॉक करो, देखो पूरा होल डे आप एकदम फिट रहोगे। थोड़ा हाथ पांव घुमा देना है, थोड़ा ये करना है। सो दोज हु डू नॉट फाइंड टाइम फॉर एक्सरसाइज विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। जिसको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जरूर टाइम देगा। इसलिए जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आपको यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज गुड फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। जब एक्सरसाइज करते हो, आपके ब्रेन से बहुत सुंदर हार्मोन्स पैदा होता है, जिससे आपको सेंस ऑफ वेलबींग होता है। इस प्रकार हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए सोचते हैं हमेशा कई लोग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मोस्टली फिजिकल, शारीरिक सुंदरता देख के लोगों का रिलेशन होता है, नहीं, हमें ये सब अनहेल्दी रिलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें गुड रिलेशन रखना है, हैप्पी फैमिली लाइफ रखना है, तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड वी शुड हैव प्योरिटी इन आवर थॉट्स। जैसे छोटा बच्चा सबको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि उसके मन में कोई छंद कपट और उल्टी से कुछ बातें नहीं होती है। और हमारे मुख से भी जैसे सुरीली आवाज निकलता है बांसुरी से, कितना अच्छा लगता है सबको। हमारे मुख से भी ऐसे शब्द निकले जो सबको सुख दे, हमारा कर्म भी बहुत अच्छा हो, प्योरिटी इन एक्शन, तो ही हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। और सी नो एविल, टॉक नो एविल। महात्मा गांधी के पास 3 बंदर थे, क्या? एक मुंह को कवर करके रखा था, एक आंख, एक कान, कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। लेकिन आप अगर सचमुच जीवन में सदा हेल्दी रहना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, मैं तो कहूँगा बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत खाओ, बुरा मत पढ़ो, बहुत सारी चीजें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
एंड पर्सनल हाइजीन। लाइक 2 बार तो ब्रश करना चाहिए बच्चे, नहीं तो आपके दांत मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया ना, जिंदगी भर रोते रहोगे। सवेरे उठते ही ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, और मुंह जो भी खाते हो तुरंत खुला कर देना। 2 बार शावर भी लेना चाहिए, अच्छी तरह से शरीर स्वच्छ रहेगा। और आपका हैंड वॉशिंग कितना इंपॉर्टेंट है आजकल तो सुन रहे हो सब, और इस प्रकार फुट केयर भी करना चाहिए, तो ही आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, सो द टेक होम मैसेज इज meditate and exercise regularly. Exercise for physical body, meditation is exercise for the mental। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के लिए डेली स्किपिंग करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, और मेंटली हेल्दी रहने के लिए मेडिटेशन करो। गो वेजिटेरियन, बच्चे बिल्कुल ऐसे प्रतिज्ञा करो कि बिल्कुल नॉनवेज देखना भी नहीं, टच भी नहीं करना। इतने पशु पंछी जानवरों को हम मार के खा ले, इसलिए तो ये कोरोना श्राप लग गया सब, जानते हो, सभी एनिमल्स का श्राप लग गया ह्यूमन बीइंग को, सबको मार के खाता था। और ईट मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, हमेशा कम कम खाओ, 5-6 बार खाओ। एकदम बहुत ज्यादा खा के फिर मोटे भी हो जाएंगे, शुगर भी बढ़ेगा। और ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। एडल्ट से तो 3 लीटर 4 लीटर भी पी लो, कोई बात नहीं, 2 गिलास पियो। ईट अर्ली एंड स्लीप अर्ली, सवेरे शाम को 8 बजे तक खाना खा लो, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। ठीक है, एंड अवॉइड फास्ट फूड, बाहर का बाजार का बिल्कुल टच नहीं, घर में मम्मी जो बनाते हैं वही खाओ, ऑनलाइन चीजें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। से नो टू एडिक्शन, बिल्कुल। एक बार भी कोई आदत हो गया ना, देखना जिंदगी भर रोते रहोगे। बिल्कुल टच नहीं करना ये सब चीजों से, तम्बाकू, सिगरेट, शराब। सो डू यू रियली वांट टू बी हेल्दी, और सचमुच आप हेल्दी बनना चाहते हो तो एडॉप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इज द नीड ऑफ द आवर। तो जो मैं बताया, सो क्रिएट द लाइट ऑफ योर लाइफ। इट डज नॉट मैटर फॉर हाउ लॉन्ग द रूम हैज बीन डार्क, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए ईयर, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इट डज नॉट मैटर। बट द मोमेंट यू ब्रिंग ए कैंडल, darkness vanishes like it was never there. So similarly, it does not matter for how long we are stuck in our sense of our limitations. The moment you decide to break free, nothing will stop you. तो आज तक अगर हमने नहीं सुना, नहीं समझा था, कोई बात नहीं। द डे जब जागो तब सवेरा कहा जाता है। तो आज तो कम से कम रियलाइज करो, जीवन परिवर्तन करो, आदर्श होके दिखाओ, आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो, जीवन को चेंज करो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, समाज के लिए आदर्श बन के दिखाओ। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। ओके, सभी को समझ में आया? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Now Yes, I request Nandini for the vote of thanks. Thank you, sir, for such a valuable session. It is true that health is wealth, and one has nothing if health is lost. It is important to live a life taking care of one's health and well-being in order to live a happy and healthy life. We thank you for enlightening us and helping us lead better lives by bringing necessary changes in our lifestyles, especially by incorporating spirituality and exercise in our lives. Once again, we thank you from the bottom of our hearts.